سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی جس نے بالیاں نوچی تھی اور اس نے کان کاٹے تھے، وہی بندہ تھا جس نے کربلا میں سب سے پہلا ماتم کیا تھا. وہ ماتم بھی کر رہا تھا، سکینہ کے پازیب بھی اتار رہا تھا، وہ ماتم بھی کر رہا تھا اور اس کے بعد بالیوں کو کھینچ بھی رہا تھا. کسی نے کہا ظالم، تم ماتم بھی کرتا ہے، بالیاں بھی کھینچتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، پازیب بھی اتارتا ہے. اس وقت اس نے کہا تھا میں ان کا شیعہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کی مصیبت پر میں ماتم کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے اگر میں سکینہ کی سونے کی بالیاں نہ چھینوں گا، میدان کربلا کے اندر امام حسین اور سیدہ زینب یہ دو ایسے نفوس قدسیہ ہے جن کا کردار کلیدی کردار رہا ہے. لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کا کردار ختم ہو جاتا ہے بظاہر، اور پھر سیدہ زینب پورے قافلے کی سالار بن جاتی ہے. امام علی مقام نے جب اپنی بہن کو آخری سلام کیا ہے، اللہ اکبر، تو امام اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب بات یہ ہے اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر سے پہلے نہیں ہو سکتی. بہن جب میں جا رہا ہوں اہل بیت کے قافلے کی سالار تم رہو گی. میری بہن ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، صبر کرنا اور آل محمد کی لاج رکھنا. میدان کربلا سے لے کر مدینہ منورہ کے صحرا تک اب اس قافلے کی قیادت تمہیں ہی کرنی ہے، تم ہی اس قافلے کی سالار رہو گی. آپ غور تو فرمائیں، آپ اندازہ تو کریں، جس وقت ایک بھائی اپنی بہن کو آخری نصیحت اور وصیت کر رہا ہوگا اس بہن کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی. لیکن زینب نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، زینب کی رگوں میں علی کے مرتضیٰ کا خون موجود تھا. اللہ اکبر، امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. اب زینب کا مکمل کردار شروع ہوتا ہے. یوں تو مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک سیدہ زینب برابر کی شریک ہے، امام علی مقام کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہی ہے. لیکن اب سیدہ زینب کا کردار شروع ہوتا ہے. کربلا کی دھرتی پر اون و محمد کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب اکبر کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب قاسم کی شہادت. اس کے بعد اخیر میں امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بھی شہادت ہوتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج کی عورتیں دوپٹہ کہیں ہیں، سر کے بال کہیں ہیں، آؤ فگا ہیں، نوحہ خانی ہے. لیکن اللہ اکبر، ان شہداء کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا اور جن شہداء کی لاشیں خیمے کے قریب رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو یزیدیوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے کربلا کے میدان میں ڈال دیا. اور اتنا ہی نہیں، آئینہ قیامت میں حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ جس کتاب کی تصدیق امام اہل سنت نے خود کی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں شہداء کے لاشوں سے ان کے کپڑوں کو بھی نکال لیا گیا. اور اتنا ہی نہیں، ان کے کپڑے نکالنے کے بعد ان لوگوں کے وجود پر گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو کچل دیا گیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ غور تو کریں، آپ اندازہ تو کریں، 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے وجود پر جب ان کی معصوم پسلیوں پر گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جاتا ہوگا اس وقت زینب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہے لیکن زینب کبھی علی بن کر، زینب کبھی حسین بن کر، زینب کبھی فاطمہ بن کر پورے گھرانے کو ساتھ دیتی ہے، لوگوں کو سہارا دیتی ہے. آپ غور تو فرمائیں، کربلا کے اندر خیموں کو لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی. وہ خواتین جن کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا ان خواتین کے دوپٹے چھین لیے گئے. مگر قربان سیدہ زینب کا حوصلہ، زینب کہتی ہے اے نبوت کے گھر کی عورتوں، کل تک کہ تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی اب دوپٹے چھین لیے گئے، بے پردہ مت ہو جانا. اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے کہ تم
तुम अपने बालों को जो पीठ पर रखती थी अब अपने बालों को चेहरों पर कर लो, बालों के जरिए से चेहरे छुपा लो ताकि बेपर्दगी का शायबा तक न रहे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज की बच्चियां, आज की लड़कियां, आज की खवातीन तिजोरियां दुपट्टों से भरी हुई है, उसके बाद भी अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने बालों की नुमाइश करती है। अल्लाह अकबर। नर्म नर्म गद्दों पर नमाजें कज़ा की जाती है, मोबाइल का मिसयूज किया जाता है, इंटरनेट पर, मोबाइल के जरिए से इंटरनेट पर जो है गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में आज की नौजवान बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा तफरीह का सामान है। कभी देखा कोई खूबसूरत नजर आया, दौलतमंद नजर आया, दौलत की लालच में, हुस्न की लालच में, पार्कों में घूमने की लालच में किसी से भी दोस्ती कर ली। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सैयदा ज़ैनब कुबरा ने भाई के लाश पे घोड़े दौड़ते देखे, आपकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जब दुपट्टे छीन लिए गए तो उन बीवियों को सहारा देकर ज़ैनब कहती है अपने बालों को चेहरों पे डाल लो ताकि ये जालिम तुम्हारे चेहरों को न देख सके। फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सैयदा बीबी सकीना के चेहरे पर यजीदियों ने तमाचे मारे और तमाचे मारने के बाद जनाबे सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के कानों से बालियों को खींच लिया गया और जब बाल खींचे गए, जब बालियां खींची गई तो सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कान कट गए और खून की फुवारें निकलने लगी। सैयदा सकीना ने अपनी फूफी को पुकारा, फूफी फूफी कह करके पुकारा। रौदतुश शुहदा के अंदर लिखा गया है, अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी भी लिखते हैं और अल्लाह अकबर सीरत की जो करबला की सीरत पे लिखी गई किताबें हैं, बहुत सारी किताबों में है सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की जिसने बालियां नोची थी और उसने कान काटे थे, वही बंदा था जिसने करबला में सबसे पहला मातम किया था। वो मातम भी कर रहा था, सकीना के पाजेब भी उतार रहा था, वो मातम भी कर रहा था और उसके बाद बालियों को खींच भी रहा था। किसी ने कहा जालिम, तू मातम भी करता है, बालियां भी खींचता है, मातम भी करता है, पाजेब भी उतारता है। उस वक्त उसने कहा था मैं इनका शिया हूँ, इनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इनकी मुसीबत पर मैं मातम कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है, अगर मैं सकीना की सोने की बालियां न छीनूंगा तो कोई और आकर के छीन लेगा, मैं पाजेब न उतारूंगा तो कोई और आकर के पाजेब उतार लेगा, इसलिए मैं मातम भी करता हूँ, छीनता भी हूँ। आज मुझे सुनने में आया है कि गुजरात की सरजमीन पर सुन्नियों की औरतें, सुन्नियों के लड़के करबला के मौके पर मातम करते हैं। अफसोस है तुम पर, सबसे पहला मातम करबला में सकीना की बाली को छीनने वाले ने किया था। सबसे पहला मातम करबला में सकीना के पैरों से पाजेब निकालने वाले ने किया था। ये मातम करना हुसैनियों का तरीका नहीं, मातम करना सैयदा ज़ैनब का तरीका नहीं, मातम करना ज़ैनुल आबिदीन का तरीका नहीं, मातम करना तो यजीदियों का तरीका है, जो यजीद के लश्कर में थे उनका तरीका है। सुन्नियों कहाँ जा रहे हो? ऐ सुन्नी खवातीन कहाँ जा रही हो? तुम्हें माज़अल्लाह राफ़िज़ियत की तरफ ले जाया जा रहा है। अर्ज ये कर रहा था, सैयदा सकीना बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ती है, हजरत ज़ैनब उनको भी सहारा देती है। ऐसे में एक अजीब मंजर देखने में आता है। मौर्रिखीन लिखते हैं, शहादत हुसैन के बाद खैमे जल रहे हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं। मजलूम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से खैमे में जलते हुए खैमे में पड़े हुए हैं और जमीन के ऊपर है, नीचे जो चमड़े का बिस्तर था वो भी यजीद छीन कर ले गए। मजलूम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर है। उनकी क्या कैफियत थी, जिनको आराम और राहत के साथ कभी सीने पे सुलाया जाता था, आज उनके लिए बिस्तर तक नहीं है। सैयदा ज़ैनब खैमे की आग पर चलती हुई कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। किसी ने पूछा, ऐ बीबी, क्या तुझे तेरी जान की परवाह नहीं है? तुझे तेरी जान की खबर नहीं? तू
आग पर क्यों चलती है? ज़ैनब ने कहा क्या करूं, मेरे भाई के मेरे भतीजे के खैमे में आग लगी है, अगर मैं भी चैन से बैठ जाऊं तो हुसैन का बेटा जल जाएगा, हुसैन की नस्ल किससे चलेगी, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने खैमे की आग पर चलते हुए अंदर तशरीफ ले गई और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर डाला और कांधे पर डालने के बाद आग पर चलती हुई लेकर के आई। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो सैयदा ज़ैनब का नाम जब भी हमारे लबों पर आता है अकीदत के साथ गर्दनें झुक जाती है। ज़ैनब, तूने एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके कयामत तक के हुसैनी सैयदों को जिंदगी अता की है। अगर तूने ये किरदार अदा न किया होता तो गरीब नवाज का वजूद कैसे होता, महबूब इलाही का वजूद कैसे होता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वजूद कैसे होता, हज़रत बरकतुल्लाह इश्की महरवी का वजूद कैसे होता, वारिस देवा का वजूद कैसे होता, अल्लाह अकबर, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का वजूद कैसे होता। 12 इमामों की इमामत में जो है वो तकरीबन 7 इमामों की इमामत कैसे होती। आप गौर तो फरमाए, ज़ैनब ने एक ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर 7 इमामों की इमामत को बचाया है और कयामत तक के सज्जदों को जिंदगी अता की है। ज़ैनब वो खातून है। ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, ज़ैनब तेरे किरदार को सलाम, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ज़ैनब तेरी ताकत को सलाम। तू वो औरत है कि तूने साबित कर दिया कि शेरे खुदा की बेटी की जुर्रत का ये आलम है, तो फातेह खैबर की ताकत का आलम क्या होगा, फातेह खैबर की कुव्वत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो दुनिया ने कहा है कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली की बेटी की ताकत का और जुर्रत का ये आलम है। लेकिन कुर्बान, खैमे जल रहे हैं, प्यास से बच्चे बेहोश हैं, अस्र का वक्त आ गया है, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, बीवियां रो रही है, अनकरीब ऐसा है कि अस्र का वक्त खत्म हो जाएगा। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए बीबियों, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना अभी बाकी है। ए औरतों, बहुत रो चुकी हो, रोना बाकी है, लेकिन सुनो, नाना की हदीस है, जिसने अस्र की नमाज जानबूझकर छोड़ दी अल्लाह उसके आमाल को बर्बाद कर देता है। असर की नमाज छोड़ने वालों का अमल चला जाता है। बीबियों, तुमने करबला में बहुत मुसीबत उठाई है, अगर असर नहीं पढ़ोगी तो मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारा अमल बर्बाद न हो जाए, इसलिए अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। उठो और पहले असर की नमाज पढ़ो। बीबियों को असर की नमाज पढ़ो, ये हौसला दिया ज़ैनब ने।